Now, in this lecture, we will see some part of thread measurement. First, we will see the syllabus, how much we have covered. Hmm. We will have a glimpse of that, and then we will go ahead. I will show you syllabus. So I'm sharing the syllabus now. I'm sharing it. So this is our metrology syllabus, metrology and quality control. Uh, Here, the first module we had already completed. Just see this, all these steps. You can see all these topics. Introduction, need of inspection, objective of metrology, all these instruments we have already covered in the practical and theory sessions both, and standard of measurement, special second topic it was in our syllabus, in our PPT. Then gauges for measurement, we have studied lot in detail. Gauge design IS 3455 1971 and revised in 83. Also in 93 we studied Taylor's principle of gauge, that go gauge always checks the uh, maximum material condition, like that, and it should check all the features, not only the dimension in one pass. Okay, so that's why go gauge is longer in size. That also we studied. Then we went to the second module. In second module is a very big module, and in that 2.1 and 2.2 we have covered. Now this 2.1 and 2.2 goes hand in hand, because the instruments spirit level and autocollimator, they are considered as angular measuring devices, and that is used for straightness measurement, because that we saw that crest and depth, like that the slope which is climbing and retarding, that is considered as angle, and that's why straightness measurement, and so also the flatness measurement and angular measurement goes hand in hand together. So just we check straight edge. Yesterday only we studied spirit level. Yesterday only studied autocollimator in the earlier lecture. Then all these bevel protractor, all three types, sine bar, sine center, sine table, that sine family, spirit level again it has come like that. Clinometer, yesterday only we have checked. And optical instrument means basically clinometer only. An optical instrument it is angle decker and autocollimator. Okay, optical instruments for angular measurement are nothing but autocollimator and angle decker. Okay, so that we studied. Now 2.3, actually, if you go to the end of the syllabus, they are saying that terminology of screw thread, surface finish measurement, and TQM. These are self-learning topic by students. So that notes I will give you, surface finish measurement, etc. And first we will give the priority topics, and then I will cover the surface finish measurement. Okay, because it is anyway considered as self-learning. But whatever I have to teach, that I'll cover first. Then definitely time will remain, and then we will come to this surface finish. So though it is mentioned there self-learning, I'm going to teach you some major topics in surface finish measurement. I'll have a glimpse of that. I'm giving you detail what to be covered in surface finish measurement, that I'm going to teach you again. So this screw thread measurement, in that terminology of screw thread, they are expecting that you should know it. huh? But again, we will have one summary of that. Then thread gauges. What are various types of thread gauges? Huh? Measurements using floating carriage micrometer. It's development of bench micrometer later on in the floating carriage micrometer, that we will see. And um, that some of the uses of special measuring instrument like tool maker, microscope, profile projector are also there in screw thread measurement, in form measurement, that V angle measurement, like that. So all these things are basically related. Okay, so we will see some other, just a minute. Yeah, so we will see this thread measurement. These are my drawn slide. Now this first figure is of floating carriage micrometer, that we will see later on. In the floating carriage micrometer, when we draw, uh, this is a 2D figure I have drawn long back. When people were finding difficult to draw 3D figure,
That time I have drawn. Later on, somebody wrote the book after 10 years, and I saw such type of book in his book also. I have prepared this slide long back in 95, 96 somewhere. That time's figure it is so thoda sa faint ho gaye, but I think you can understand the um, diagram, basic dimensions, and oh sorry, basic this moments etc. that is shown by arrows. First we will see screw threads and what are various types of that measurement of various diameters of screw thread. बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड अगर आपने देखा तो यू विल हैव वेरियस टाइप्स ऑफ थ्रेड्स. you have you have metric thread where 60-degree angle is there, Whitworth thread with V angle is 55 degree. Then you have BA thread, that is British Association thread. Then you have Acme thread. Okay, in Acme thread it is a frustum of cone, it is not perfectly V, but it is a frustum of cone, like that shape is there. Then you have square thread which are used for power transmission. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर थ्रेड आपने कहाँ पे देखे होंगे, तो अपना जो यूटीएम है ना अपना यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन सॉम लैब में, तो वो पावर अप्लाई करने के लिए स्क्वायर थ्रेड्स यूज करते हैं. हैविंग ट्रेमेंडस पावर, एक्मे थ्रेड एंड स्क्वायर थ्रेड. some special now these threads along with different pitches are used for various application. Pitch is the distance between two successive crest or two successive troughs that you know, and if pitch is closer then that thread is considered to be tight. For example, for hydrogen cylinder the pitch is very less. Okay, why it is less? Because hydrogen is very explosive, and for safety purpose that those threads are very close threads. Okay, like that we have observed in when I was in industry. I learned that. Now here you can see various types of anvils are there. Now measuring instrument may be anything. It may be thread micrometer, just like our regular micrometer screw gauge. If your anvil is V type, which matches in the thread, then it is known as thread micrometer. बाकी सब इसका फीचर्स ये इंस्ट्रूमेंट का सेम है. जैसे आपका मेन स्केल रहेगा जिसका 1 mm का ऊपर का ये रहेगा लिस्ट काउंट ऊपर के स्केल का, नीचे वाला स्केल का 0.5 रहेगा, मतलब वो 2 mm के बीच में उसका स्केल रहेगा. देन यू हैव अ थिम्बल हियर और उसमें एक सर्कुलर स्केल है, तो उसका लिस्ट काउंट आपका रहेगा 0.01 mm, क्योंकि वो 0.5 mm में उसका 50 डिवीजन रोटेट होगा. एक फुल रोटेशन होगा तो 50 डिवीजन उसका एक एक थिम्बल पे 50 डिवीजन है और उसमें वो 0.5 कवर होता है एक रोटेशन में. तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50 अगर आपने किया तो इट इज 0.01 which is the least count of thread micrometer, 0.01 mm. So only now you can measure all these dimensions using thread micrometer up to accuracy 0.01. अगर एक्यूरेसी आपको ज़्यादा चाहिए तो आपके लिए फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर बाद में है, वो हम लोग स्टडी करेंगे. तो एक्चुअली थ्रेड माइक्रोमीटर से हम लोग ये सब मेजर कर सकते हैं. ओनली यू हैव टू चेंज द एनविल. अभी आप बोलेंगे एनविल कैसा चेंज करेंगे, तो मेजर डायमीटर के लिए जो एकदम बाहर वाला आउटसाइड डायमीटर है ओडी, दैट इज मेजर डायमीटर. तो उसके लिए आप ऐसा एक 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 एनविल तो आपका छोटा रहेगा क्योंकि वो वी पे आके टच करेगा, लेकिन दूसरा जो एनविल है वो बड़ा आपको लेना पड़ेगा क्योंकि इसको वी एंगल ये जो एंगल है हेलिक्स एंगल, इसके वजह से ये ऐसा टेपर होता गया है ना, तो थोड़ा सा आपको ये चाहिए, मतलब थोड़ा सा बड़ा चाहिए ताकि ये ऐसा सेंटरिंग इसका बराबर आ सके. इसका जो बराबर सेंटर है इसमें ये आएगा वी आएगा ना, तो आपका ये एक्सियल डिस्टेंस बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आ जाएगा. मीन्स ये जो पोर्शन है ना ये वाले थ्रेड का ये इसके सेंटर में आना चाहिए, और ये यहाँ पे दूसरा जो साइड वाला थ्रेड है जो राइट साइड में यहाँ टच हो रहा है वो वी एंगल की वजह से बाद में अंदर आएगा. तो ये पोर्शन जनरली अंदर आना चाहिए एनविल के. इट शुड नॉट बी डायगोनल. दैट्स व्हाई
ना उन्होंने ऐसा किया है कि ये एक एक साइड थोड़ा सा बड़ा है, एक साइड थोड़ा सा छोटा है। और वो जो एनविल है इसमें ये साइड में वो बड़ा लगाते हैं, ये साइड में छोटा लगाते हैं एज यूजुअल, और वी थ्रेड मेजर करते हैं। तो आपको वी 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 थ्रेड का ओडी मिलेगा। ऐसा अगर स्पेशल ये एनविल है, ये स्पेशल अगर आपका टिप्स है इसका माइक्रोमीटर का जो अंदर जा रहा है, तो इट विल मेजर द माइनर डायमीटर ऑफ ए स्क्रू थ्रेड और इनसाइड डायमीटर ऑफ अ स्क्रू थ्रेड। अगर आप वी वी दोनों साइड में ले रहे हैं, एक साइड में मतलब ये अपोजिट जो वी है वो अगर आपका कवर हो रहा है, अपोजिट वी अगर कवर हो रहा है आपके थ्रेड का, ये वी में जा रहा है और उसके अपोजिट में भी ऐसा जा रहा है, तो इट विल मेजर द इफेक्टिव डायमीटर। ओके, इफेक्टिव डायमीटर, ये इफेक्टिव डायमीटर इज अ डायमीटर, इमेजिनरी डायमीटर, एंड इट इज इन बिटवीन रफली अगर लिया जाएगा ना, इट इज एवरेज ऑफ माइनर एंड मेजर डायमीटर, बट इट इज नॉट एक्चुअली द केस। इट इज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड ऑफ द माइनर डायमीटर। इट इज बिकॉज वो साइड में एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड दैट डायमीटर इज सच दैट फ्रॉम विच प्रेशर एक्चुअली पासेस। मतलब नट और बोल्ट जब आप टाइट करते हैं तो वो जो प्रेशर पास होता है ना, वो इफेक्टिव डायमीटर से पास होगा। प्रेशर, it is a line of application of the actual pressure in the axial direction. So that is actually the effective diameter, that's why it is the effective one, that is वहां से आपका प्रेशर एक्चुअली वो लाइन से पास होगा पैरेलल टू द एक्सिस। ऐसा है। सो ये आप लोग उसका ये मेजर कर सकते हैं, ये अलग अलग एनविल से। और ये है आपका थ्रेड माइक्रोमीटर। और यू कैन सी दिस इज फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर। इसमें भी आप उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको वायर मेथड यूज किया है, 1 वायर मेथड, 2 वायर मेथड, 3 वायर मेथड। सो इन दैट एक्चुअली 2 वायर एंड 3 वायर मेथड्स आर वेरी वेरी पॉपुलर। तो थोड़ा सा और हम उसको देखते हैं। ये बाकी मेजरमेंट्स है थ्रेड के। इसमें ये पिच मेजरिंग मशीन है। ये मैं आपको यहाँ यहीं पे ऑलरेडी माई स्लाइड इज देयर, सो आई विल एक्सप्लेन दिस हियर ओनली। तो हर एक के 2D मैंने किए हैं। तो ये पिच मेजरिंग क्या करता है मैं बताता हूँ। सी यू कैन सी द टॉप व्यू ऑफ दिस पिच मेजरिंग मशीन। तो ये एक्चुअली वो पिच मेजरिंग मशीन के स्लाइड्स है। ये स्लाइड पे ये पूरा कैरेज ऐसा ऐसा घूमता है लॉन्गिट्यूडिनली। ओके, उसी मशीन पे ये सेंटर्स है, ये एक सेंटर है और ये साइड में सेंटर है। ये सेंटर का ऐसा थोड़ा सा एक्सटेंशन है, ये ऐसा ये जो है ना, ये उसका पिलर है सेंटर का। और उसी में साइड में एक माइक्रोमीटर अरेंजमेंट है और एक स्क्रू है। और उसको ये जो पोर्शन है ना आपका मेजरमेंट करने वाला, दिस इज नोन एज फिड्यूशियल इंडिकेटर। ओके, वो आपको टच में इसके साथ में इसमें ये इसको अटैच है। ओके, ये लीड स्क्रू को। और ये जो है ना, ये प्लंजर है, ये वी में जाता है। ओके, इसको थोड़ा सा यू टाइप शेप है, मतलब ये इसलिए है कि अपना वी जो है ना, वी को बराबर अंदर सीट कर सके। आपको मालूम है, आपने जिग्स फिक्सर वगैरह देखते टाइम के, अगर ये वी बराबर है ना तो वो सर्कुलर पोर्शन उसमें जाएगा तो सेल्फ सेंटर होता है बराबर। आप बोलेंगे एग्जैक्टली वी क्यों नहीं? एग्जैक्टली वी की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपके अलग अलग थ्रेड फॉर्म आएंगे तो वो भी काम नहीं आएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा यू यू शेप दिया है लास्ट में प्लंजर को। तो ये क्या करेगा प्लंजर, एक साइड में यहाँ पे जाएगा और अ, हम यहाँ से पीछे एक हैंडविल है, ये हैंडविल ऐसा घुमाएंगे तो ये आगे आएगा। ओके, ये देखो ये मोशन मैंने दिखाया है, स्लाइडिंग मोशन दिखा है ना आगे पीछे होने वाला। तो ये मोशन आगे जाएगा। और ये एक ग्लास ट्यूब है जिसमें एक पॉइंटर है ना, वो एक पर्टिकुलर प्रेशर प्लंजर पे लगने के बाद ये पॉइंटर ऐसा ऐसा घूमता रहता है। तो हम क्या करेंगे मालूम है क्या, कि ये यू टाइप जो प्लंजर है ना, ये एक थ्रेड में यहाँ पे लगाएंगे। हाँ, और एक ऐसा प्रेशर देंगे कि ये पर्टिकुलर जो पॉइंटर है ये इस मार्क की तरफ आए, जीरो मार्क की तरफ आए। इसका मतलब वो प्रेशर अभी अपने को अगले मेजरमेंट में भी कंटिन्यू रखना है। मतलब क्या है कि हमने ज़्यादा प्रेशर दिया
तो ये अंदर जाएगा ना थोड़ा सा, हाँ? ये यू थोड़ा सा अंदर आएगा, कम प्रेशर दिया तो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो उसमें भी एक्यूरेसी आपकी बदल सकती है ना। ये एक्यूरेसी का मामला है, इसलिए टू हैव अ पर्टिकुलर प्रेशर, इसको प्लंजर को जब यहाँ दबाते हैं एक पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंटर है ये यहाँ पे आएगा। अभी हम क्या करेंगे, उसका रीडिंग यहाँ माइक्रोमीटर पे ले लेंगे, पहले थ्रेड के पहले पोजीशन का एक एक रीडिंग ले लेंगे। लेट अस से इट इज 3.5, लेट अस से इट इज 3.5। अब इसको हम पीछे हटाएंगे, हाँ? और पीछे पीछे हटा के ये जो माइक्रोमीटर है उसको हम लोग उल्टा घुमाएंगे ऐसा, हाँ, सो दैट ये कैरेज अभी पीछे आएगा, और पीछे आके नेक्स्ट किस में बैठेगा ये प्लंजर, ये अगले अगले थ्रेड में बैठेगा, बराबर। और उसी समय उस समय भी प्रेशर उतना ही चाहिए जैसे ये पॉइंटर यहाँ पे आए। इसका मतलब आपने क्या किया, दो एग्जैक्ट पोजीशन, एक बार ये वी में, पहले वाले वी में यहाँ पे, और बाद में ये वाले वी में। यानी आप क्या मेजर कर रहे हैं बच्चों, क्या मेजर कर रहे हैं आप, सक्सेसिव सक्सेसिव वीक का वही डिस्टेंस आप क्या मेजर कर रहे हैं, पिच मेजर कर रहे हैं, अंडरस्टूड। और वो टाइम पे भी एक रीडिंग ले लेना, इफ इट इज 5 देन द पिच इज 5 माइनस 3.5 अर्लियर, 1.5 इज द पिच। बच्चों समझा, गिव मी द आंसर। दिस इज द, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, दिस इज द टॉप व्यू आई हैव ड्रॉन ऑफ अ पिच मेजरिंग मशीन। मैं इसका बाद में आपको ये भी दिखाऊंगा, 3D दिखाऊंगा। तो मैं अभी उसकी तरफ जाऊंगा, पिच मेजरिंग। अगर पिच में इंटरनल पिच मेजर करना है तो भी एक एक्सटेंशन रहता है, देखो इंटरनल थ्रेड है ना, तो इंटरनल थ्रेड के लिए ऐसा एक अरेंजमेंट रहता है, लीवर मैकेनिज्म, एक लीवर, और लीवर में ये एक प्लंजर है, और इधर आके ये एक प्लंजर ऐसा रहता है। मतलब ये यहाँ आके ये पूरा अरेंजमेंट इसमें थ्रेड में जाएगा, फिर और मेजरमेंट ले लेंगे, और बाद में इसको पीछे हटा के फिर इसमें प्रेस करेंगे उल्टा, तो वही प्रेशर यहाँ पे कन्वर्ट होगा और आप लोग मेजर कर सकते हैं। मतलब एक एक्सटेंशन दी है ताकि वो अंदर के अंदर का जो वी है, इंटरनल वी, उसको मेजर कर सके। तो पिच मेजरिंग मशीन दैट इज जस्ट मॉडिफाइड फॉर इंटरनल थ्रेड, बाकी सब बाहर का ये सेम है। देखो ये देखो, ये पोर्शन खाली मैंने इसमें ऐड किया है इंटरनल थ्रेड के लिए, बाकी सब सेम है। ओके, तो यह पिच मेजरिंग मशीन हमने यहाँ पे किया, कहीं तो भी मेंशन किया है क्या, नहीं किया है क्या, फ्लोटिंग क्या, टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड, पिच मेजरिंग मशीन शायद नहीं किया, लेकिन ये होना चाहिए था। टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड, थ्रेड गेजेस, हाँ, तो पिच मेजरिंग मशीन शुड हैव बीन देयर, मेजरिंग ऑफ ओनली फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर बोला है, तो वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। हाँ, तो फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर, सो फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर क्या है एक्चुअली, सेम प्रिंसिपल जैसा पिच में यूज किया ना, वैसा ये फिड्यूशियल इंडिकेटर जो है, प्रेशर देने के बाद वो कैसा घूमता है, ये यहाँ पे हमने यूज किया। तो इसका 3D थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ पहले, 3D। तो 3D दिखाने के बाद फिर 2D के पास आता हूँ तो मजा आएगा, तो नहीं तो फिर तुमको इमेजिन करने में फिर वो प्रॉब्लम आ सकता है। इधर इधर में है वो 3D फिगर, मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो गियर का है, जस्ट मिनट, किसमें गया,
यहाँ पे देखो बच्चों, ये देखो फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर, ये है अपने कॉलेज में, नया खरीदा। पहले वाला भी अच्छा था, थोड़ा पुराना हो गया था। इसका असेंबली बाद में अपन को करके देखना है। ये देखो, ये मेट्रोलॉजी वाला फिगर है अपना, इसका आर्केजाइन वाला फिगर है, और ये फोटो है। दिस फोटो आई हैव टेकन फ्रॉम नेट, ओके, इंटरनेट। और ये अपना मेट्रोलॉजी वाला फिगर है, तो वही बड़ा करके हमने थोड़ा यहाँ पे देखा है, तो इसको और थोड़ा बड़ा करेंगे। हाँ, तो ये क्या है देखो बच्चों, कि इसका ही टॉप व्यू बाद में मैंने निकाला है। ये जो है ना, ये देखो, ये टेबल नीचे रहेगा तो उसका ये स्क्वायर, हाँ। और ये वो पूरा माइक्रोमीटर का पोर्शन है, और सामने वाला ये फिड्यूशियल इंडिकेटर है। मतलब इस एनविल पे जब प्रेशर डालते हैं ना, तो वो इंडिकेटर है ना, वो ऐसा, उस पे अंदर ऑयल है, तो ऑयल प्रेशर से वो इंडिकेटर है ना, ये सेंटर में आएगा। मतलब वही प्रेशर दोनों टाइम हमको मेंटेन करना है। जैसे पिच में मेजर किया ना, दोनों व्यू में, ऐसा इसमें क्या है कि हमको अननोन कोई भी डायमेंशन मेजर करना है फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर से। इट इज यूज्ड जस्ट लाइक कंपैरेटर। तो पहले एक नॉन डायमीटर पे हम एक रीडिंग लेंगे, और बाद में वी थ्रेड लगा के उसमें वायर सेट डाल के, 2 वायर मेथड, 3 वायर सेट से हम लोग एक मेजरमेंट लेने वाले। तो ये रहा आपका फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर। सो व्हाई इट इज नोन एज फ्लोटिंग, बिकॉज सी दिस स्लाइड है ना, दिस स्लाइड, एंटायर स्लाइड इज मूविंग लॉन्गिट्यूडिनली लाइक दिस, ये लेंथ जैसा है, ये स्लाइड है ना, ये ऐसा, ये वी पे ऐसा ऐसा इधर फ्लोट होता है। ये नीचे एक बॉल बेरिंग है, तो ये बॉल्स है अंदर, नॉट बॉल बेरिंग, बॉल टाइप अरेंजमेंट है, तो बहुत स्मूथली ऐसा ऐसा होता है। और ये जो है ना, ये स्लाइड, ये क्रॉस स्लाइड है, ये देखो, ये पोर्शन है ना, इस पे ये क्रॉस स्लाइड है ऐसा, और ये लॉन्गिट्यूडिनल स्लाइड। तो डिपेंडिंग अपॉन द थ्रेड डायमीटर एंड द पोजीशन, दिस एनविल्स कैन बी मूव्ड। और ये जो एनविल है ना, ये एनविल इसको माइक्रोमीटर को जोड़ा है, और सामने वाला एनविल है वो फिड्यूशियल इंडिकेटर है। हाँ? वो एनविल का एंड पार्ट है फिड्यूशियल इंडिकेटर। फिड्यूशियल इंडिकेटर के एंड में एक एनविल रहता है, और माइक्रोमीटर को एक एनविल। तो फिड्यूशियल इंडिकेटर शुरू में टच करते हैं, और बाद में इसको हम लोग घुमाते हैं। ओके, फिड्यूशियल इंडिकेटर एक बार टाइट किया ना, तो बाद में उसको चेंज करने का नहीं, क्योंकि दैट इज रेफरेंस। और चेंज होने वाला कौन सा है, ये माइक्रोमीटर है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अननोन डायमीटर लेंगे विच इज क्लोज टू दिस डायमीटर। फॉर एग्जांपल M24 का थ्रेड है, थ्रेड गेज या थ्रेड है M24 यानी 24 is a outside diameter, okay, OD, okay, of the metric thread 24 size है, तो 24 is a OD, okay। तो हमको अगर वो OD मेजर करना है एग्जैक्टली कितना है, तो 24 को जो क्लोज रेफरेंस डिस्क है या रेफरेंस डायमीटर है अपने पास, रेफरेंस सिलेंडर अपने पास है, वो सेट अपने कॉलेज में, तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो उसमें से 24 वाला हम लोग ले लेंगे। आप बोलेंगे 20 क्यों नहीं, 20 लिया तो भी चलेगा, फिर वो 4 का डिफरेंस आएगा माइक्रोमीटर में, लेकिन क्लोज है तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, 24 वाला हम लोग ले लेंगे। 24 वाला सिलेंडर लेके ये सेंटर में हम लोग उसको अटैच करेंगे, और ये फिड्यूशियल इंडिकेटर तो सामने वाले एंड से हम लोग उसको टच करेंगे, और ये माइक्रोमीटर का ये एनविल यहाँ उसको लगाएंगे दूसरे साइड से, और एक रीडिंग ले लेंगे अपने माइक्रोमीटर पे। ओके, सो if it is 0, if it is 0, और 0, और हो सकता है थोड़ा सा प्लस भी हो, कोई वांदा नहीं, क्योंकि हमको डिफरेंस ऑफ रीडिंग बाद में लेना है। बाद में आप रेफरेंस डिस्क हटाओ, थ्रेड गेज लगाओ, हाँ, और थ्रेड लगाओ वो जो जिसका ओडी मेजर करना है। थोड़ा सा फर्क तो आएगा ही, एग्जैक्टली जो नॉन डायमीटर है अपना उतना नहीं आएगा। तो वो कितना डिफरेंस है उतना हमको यहाँ उसको आइदर पीछे लेना पड़ेगा या आगे लेना पड़ेगा। ये तो फिक्स है फिड्यूशियल इंडिकेटर वाला, ये हम चेंज करेंगे, कौन सा, माइक्रोमीटर वाला इधर का। तो वो समझो ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा रीडिंग इस पे आपको दिख सकता है। तो इसमें ना 3 स्केल रहता है, एक मेन स्केल जो ये सिलेंडर पे रहता है, सर्कुलर स्केल जो ये थिम्बल पे रहेगा ऐसा, और इधर एक और ऐसा वर्नियर स्केल एक यहाँ पे रहता है। मतलब यहाँ पे
ये डायमीटर पे एक्सियली एक स्केल रहेगा, बाद में ऐसा ये डायरेक्शन में एक स्केल रहेगा, दैट विल बी वर्नियर। मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल प्लस वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का कौन सा ये माइक्रोमीटर के स्केल को टच होता है, उससे वो अपने को थर्ड डिजिट तक जाता है एक्यूरेसी, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, वो 2D में आके आपको बताऊंगा। ये 2D का कहाँ पे गया हमारा, तो सेम फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है 2D। तो ये देखो अभी वो आपके बाद आपको इमेजिन हो सकता है कि वो नीचे वाला स्क्वायर प्लेटफॉर्म, ये दोनों सेंटर जो ऊपर आने के बाद इसको जॉब को पकड़ते हैं, और ये जो है ना, ये ऑरेंज कलर वाला जो है ना, ऑरेंज कलर वाला ये है क्रॉस स्लाइड, ओके। और ये जो ग्रीन कलर वाले दो पट्टे हैं ना, ये नीचे वाला स्लाइड, उसमें पूरा प्लेटफॉर्म घूमता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्लाइड। हाँ, ये है फिड्यूशियल इंडिकेटर, ओके। प्रेशर देने के बाद ये जो केसरी है ना, ये जो मैंने ऑरेंज दिखाया है, ये बराबर ये सेंटर में आता है, पहले वो कहीं तो भी छुप जाता है ऐसा, प्रेशर देने के बाद वो ऑयल प्रेशर से ऐसा फिड्यूशियल इंडिकेटर यहाँ पे आता है। अंदर का अरेंजमेंट मालूम नहीं वो कैसा होता है वो, ओके। आप डायल इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो जीरो पे सेट करने के लिए वगैरह, that can be done. Fiducial indicator is more famous. Then you have three scale as I told. मेन स्केल जो यहाँ पे वर्टिकल है ये सिलेंडर पे, देन सर्कुलर स्केल, और एक वर्नियर स्केल सिलेंडर पे ही रहता है लेकिन वो क्रॉस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये दोनों कौन से मैच होता है वो पहले देखेगा। ये रेगुलरली लेते हैं हम लोग। मेन स्केल डिवीजन 0.5 का उसका लिस्ट काउंट है, 0.5 mm। और ये जो है ना सर्कुलर स्केल, ये बहुत एक्यूरेट है, इसका 0.002 mm, इतना एक्यूरेसी इसका फ्लोटिंग कैरेज में 0.002 mm। और वर्नियर स्केल का और 10 गुना ज्यादा, यानी 0.0002 mm, इतना एक्यूरेसी है इसका। तो हम मेन स्केल रीडिंग लेंगे, फिर एक डिवीजन सर्कुलर स्केल का 0.002 है, तो वो कितने क्रॉस होते हैं वो उसको मल्टीप्लाई करके, मतलब कितने डिवीजन क्रॉस होते हैं वो क्रॉस करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.002 mm से, प्लस फिर इसमें से कौन सा डिवीजन मैच होता है, समझो थर्ड डिवीजन मैच होता है सर्कुलर स्केल के डिवीजन को, तो प्लस 3 इंटू 0.0002, ये सब उसका रीडिंग रहेगा। तो ऐसा पहले ये जो स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड, उस पे एक रीडिंग लेंगे, बाद में अननोन पे लेंगे, यानी समझो मेजर डायमीटर आपको मेजर करना है थ्रेड का, उसका लेंगे, और वो जो दोनों का डिफरेंस है, पहले वाला रीडिंग और दूसरे वाला रीडिंग, वो डिफरेंस ये जो स्टैंडर्ड डायमीटर है ना, जो हमने लिया था 24 का, उसमें ऐड करते हैं। So that is the unknown reading. So here floating carrier micrometer is used as a comparator, which is using standard disc or standard rollers or standard diameters, standard cylinders for measurement of unknown diameter. बच्चों समझ आया? ये पिक्टोरियली समझाना बहुत डिफिकल्ट है। पुराने जमाने में मैं लेके जाता था लैब में और सीधा मशीन पे समझाता था, वो इजी था। अभी वो फैसिलिटी नहीं है इधर ऑनलाइन में। आर यू गेटिंग इमेजिनिंग ऑल दिस थिंग? दैट्स व्हाई आई showed you the 3D figure of that। मैं फिर से आपको दिखाऊंगा वो 3D फिगर। ये देखो, ये देखो, ये फिड्यूशियल इंडिकेटर। आपको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। हाँ, ये देखो बच्चों, ये फिड्यूशियल इंडिकेटर है, उसका एक एनविल यहाँ पे आया, टच किया स्टैंडर्ड डायमीटर को, यहाँ से इसका एनविल आया, और ये देखो ये मेन स्केल यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? ये देखो मेन स्केल, मेन स्केल दिख रहा है ना यहाँ पे, मेन स्केल, ये देखो मेन स्केल। ये देखो सर्कुलर स्केल में एरो की तरफ देखो, ध्यान दो ना, ये सर्कुलर स्केल, और ये वर्नियर स्केल दिख रहा है ना, ये आर यू गेटिंग इट? और इसको घुमाते हैं ऐसा। हाँ बच्चों, फीडबैक दे दो ओपन करके, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या समझ में आया नहीं आया? एंड दिस इज बिग कास्टिंग है, ये जो पूरा कास्टिंग है, ऐसा कास्टिंग रहता है ये, और उसमें से ये अपना सेंटर से दोनों साइड से जॉब को पकड़ने के लिए। आर यू गेटिंग? नोबडी इज आंसरिंग। डर गए क्या बच्चे? हाँ, थोड़ा सा हाई टेक्निक मैकेनिकल का कोर टेक्निकल पोर्शन चालू है भाई, होना ही है अभी।
आए ना, थर्ड ईयर में आए अभी. So these are the creams of measurements and मेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे, कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ये सब. हर इंडस्ट्री में ये सब है. मतलब जो भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री का इज पार्ट एंड पार्सल. टूल रूम वगैरह रहते हैं ना, या गेज रूम, स्टैंडर्ड रूम इंडस्ट्री में, मेट्रोलॉजी लैब, मेजरमेंट लैब, ऐसा अलग अलग नहीं, स्टैंडर्ड रूम, गेज रूम, ऐसे नाम रहेंगे, उसमें ये सब रहेगा. इंस्ट्रूमेंट्स, एक्यूरेसी का मामला है ना. सो इट इज लाइक दैट. ये देखो इसी के, ये, हाँ, आर के जैन का फिगर सेम इसी का निकाला है ना. ये देखो इन्होंने भी स्केल दिखा है उन्होंने, हालांकि यहाँ पे वर्नियर स्केल दिखाना भूल गए. इट इज एक्चुअली ये देखो, ये काला काला हो गया ना इधर, इसलिए वो शायद उनको वो दिखाया नहीं उन्होंने. एनीवे बाकी सब मस्त दिखाया एकदम. ये देखो, ये बड़ा करके, ज़्यादा बड़ा करेगा तो फेंट होता है थोड़ा. हाँ ये अच्छा है. हाँ, सो यू कैन इमेजिन नाउ. सर मतलब इससे हम लोग खाली डायमीटर ही मेजर करते हैं ना थ्रेडिंग का? हाँ, और थ्रेडिंग का आउटसाइड डायमीटर मेजर कर सकते हैं. अगर आप लोग वो पर्टिकुलर एनविल यूज करेंगे अंदर जाने का, जो मैंने थोड़े देर पहले, मतलब स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर को जो जो एनविल यूज किए, वो एनविल यूज किए, तो वो जो मेजर करता है वो सभी ये मेजर करता है ज्यादा एक्यूरेसी में. स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर वही काम करता है 0.01 mm एक्यूरेसी तक, और वही काम ये भी करता है 0.0002 mm एक्यूरेसी तक. यानी एनविल के ऊपर है. आपने बड़े एनविल यूज किए, आउटसाइड डायमीटर मिलेगा. आपने वी वी एनविल यूज किए, इफेक्टिव डायमीटर मिलेगा. आपने अगर एक साइड छोटा और एक साइड अंदर अपना सॉरी सॉरी दोनों दोनों वी ये करेगा तो आप माइनर यूज करेंगे, बड़ा यूज करेंगे तो मेजर, और दोनों साइड से वी करेंगे तो इफेक्टिव डायमीटर. मतलब ये डायमीटर यूज करने के लिए ये यूज होता है. दिस इज, और मतलब ये केस में डायमीटर यूज करने के लिए होता है. तो आप कोई दूसरे जॉब का भी ये मेजर कर सकते हैं, मतलब अननोन डायमेंशन वगैरह भी मेजर कर सकते हैं इससे, अगर करना है तो आपको. बट फॉर दैट अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर. बेसिकली ये डायमीटर मेजर करने के लिए थ्रेड के लिए ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि एक्यूरेसी का मामला रहता है ना थ्रेड थ्रेड में ऐसा. सो तो सर इसमें जो हम लोग जो भी स्क्रू या मतलब पीस मेजर कर रहे हैं उसको हम लोग सेंटर कैसे करेंगे वो मेजरिंग एक्सिस के ऊपर? हाँ, ये क्या सेल्फ सेल्फ सेंटरिंग सेंटर है ना. ये क्या है, देख अपना हेड स्टॉक टेल स्टॉक कैसा रहता है लेथ में, ऐसा दोनों साइड से ये क्या सेंटर है. बस ये सेंटर में अटकवाएंगे ना उसको. ये देख, ये देखा, ये एक सेंटर है और ये एक सेंटर है दूसरे साइड में, मैंने ड्रॉ किया ना यहाँ पे. देख ये क्या, यही सेंटर है, ये सेंटर है ना. दीज आर द सेंटर्स. साइंस सेंटर में कैसा ऑटोमेटिक जॉब ये होता है कि नहीं, पैरेलल उसको सेम. अच्छा. हाँ, ये सेंटर भी है, ये नीचे वाले प्लेट को पैरेलल है, ये नीचे वाले प्लेट को ये सेंटर पैरेलल है. ये देख. हाँ हाँ, ये फोटो में भी देखो ना सेंटर, ये देख यहाँ से गया ये सेंटर. और ये जॉब के लेंथ के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं इसको, और टाइट करने का इधर, समझा ना. वो हाँ सेम सर. वो साइड से भी. और फिर जो थ्रेडिंग की जो पोर्शन आएगा वो कहाँ आएगा, इसके हिसाब से ये फ्लोटिंग कैरेज इधर उधर फ्लोट करके एडजस्ट कर सकते हैं एनविल, तो उसको भी फ्लोट सेम लेथ जैसा है रे. देख ना, दोनों सेंटर, हेड स्टॉक के बजाय एक सेंटर है, टेल स्टॉक जैसा सेंटर, और ये अपना टूल पोस्ट और स्लाइड कैसा घूमता है ना, वैसा ये भी घूम रहा है. ये देखो क्रॉस स्लाइड भी है, ये देखो ये क्रॉस स्लाइड किसके लिए, आगे पीछे टच करने के लिए, क्योंकि जैसे डायमीटर बढ़ेगा घटेगा, आगे पीछे तो जाना ही है ना हमको. ये हाँ. लेथ जैसा है, देख सेम 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 लेथ की प्रतिकृति लगती है कि नहीं ऐसी. ऑल मोशन आर लाइक लेथ सेंटरिंग, इधर का एक सेंटर, इधर का एक सेंटर, लॉन्गिट्यूडिनल स्लाइड, क्रॉस स्लाइड. तो लेथ को सर याद करो, सेंटर लेथ को, सेम है देखो ऐसा. हाँ सर हाँ बोला. सर लेथ में तो चक था ना सेल्फ सेंटरिंग करने के लिए सर. तो अगर इधर दो तो सेंटर्स है तो सर अगर ऑफसेट रहेगा तो थोड़ा टिल्टेड रहेगा तो कैसे ऑफसेट पता चलेगा? ऑफसेट नहीं रहेगा ना, तो फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर बनाने वालों ने वो केयर कंपनी क्यों खोली है इतनी स्पेशल. वो स्पेशल, ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन है, वो इसको पैरेलल है, तभी तो वो लोग बेच रहे हैं. नहीं तो हम लोग असेंबली करके नहीं बेचते थे के बाहर. वो लोग स्पेशलिस्ट क्यों है, उन्होंने बनाते टाइम में ये एक्यूरेसी बनाई है ना.
ये जो सेंटर है, ये यहाँ से जो अंदर डाला ये होल से और वो होल से, तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर इज पैरेलल टू दिस प्लेट, समझ गए? तो दैट इज ऑलरेडी देयर। यस सर। हाँ, मशीन के सेटअप में ही है ना। आपको खाली जाके क्या करना है, आपका जो जॉब है ना उसको दोनों साइड में आपको ये लगा, उसको सेल्फ होल्डिंग सेंटर तो है बनाए उसमें उसमें डालना है, दोनों सेंटर में उसको अटकाना है जॉब और टाइट करना है, क्योंकि वो तो हमने लेथ पे ही बनाया ना स्क्रू थ्रेड का वो जो ये है, और दोनों साइड में उसको वी है देखो ऐसे, मतलब एक छोटा सा एक ये रहता है बोर, ओके, वी वी टाइप का। हाँ, तो उस वो उसी के लिए, वो होल्डिंग के लिए रहता है वो, इट इज अच्छा, नॉट। मतलब हमें पहले लेथ पे बोर मारना है, बाद में इसके ऊपर यूज करना है वो। हाँ, एक छोटा सा वी वी एक यहाँ से लेथ पे उसको हम लोग जब ये करते हैं ना, वो थ्रेड बनाते हैं ना, उसी समय टेल स्टॉक में एक ड्रिल मार के थोड़ा सा उसको ऐसा वी बनाते हैं ना, सेल्फ होल्डिंग के लिए दोनों हाँ। साइड बनाते हैं, तो वही वो सेंटर में डालने के लिए रहता है, वो सेंटर में अच्छा। डालने के लिए रहता है ऐसा। नहीं तो फिर क्या मेजर करोगे आप लोग, नहीं तो फिर उसकी जरूरत नहीं ना, उस वी की जरूरत ही नहीं ना बाद में। आपने देखा होगा कभी भी गेज वगैरह रहेगा तो एक वी रहेगा ऐसा, वो दैट इज फॉर होल्डिंग इन द सेंटर, तभी तो अलाइनमेंट होता है ना बेटा। नहीं तो फिर क्या मतलब ही नहीं रहेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर है, स्मॉल स्मॉल डाउट्स है ना बच्चों को, एंड वी पीपल एज्यूम दैट कि बॉयज नो इट, ऐसा लगता है हमको, मतलब सेकंड ईयर में किसी ने पढ़ाते टाइम वगैरह किसी ने सिखाया होगा ऐसा हमको लगता है, वर्कशॉप वालों ने वगैरह। लेकिन देखो अभी तुम्हारे मन में वो बेसिक डाउट था, वो किसके लिए है, वो भी वो इसी के लिए है ना, काउंट ये, वो एक छोटा सा वो साइड से एक छोटा सा होल जो किया रहता है वो उसी के लिए, सेल्फ होल्डिंग के लिए सेंटर में। ऐसा, सो दैट दिस इज अबाउट फ्लोटिंग कैरेज। अभी इसका आगे का जो पोर्शन है ना वो अच्छा आपको एक पिच मेजरिंग का भी बोलता है, पिच मेजरिंग अभी थोड़ी देर पहले दिखा है ना, तो ये देखो ये पिच मेजरिंग मशीन, इसका जो मैंने बोला था ना वैसा, मेरा ज़्यादा अच्छा है इससे भी फिगर। हाँ, ये देखो ये साइड में उसका माइक्रोमीटर, ये इसमें जॉब आप ये सेंटर्स में लगाते हैं। हाँ, एक साइड टाइल में वो स्टाइलस या प्रोब हम लोग एक व्यू में लगाते हैं, फिर पीछे लेके इससे मतलब पीछे लेके ऐसा ऐसा घुमा के इसको पीछे लेते हैं और दूसरे व्यू में डालते हैं, तो दो सक्सेसिव व्यू में वो प्लंजर डाला और वो प्रेशर सेम रहेगा यहाँ पे फिड्यूशियल इंडिकेटर का, तो हम इसके रीडिंग मेजर करते हैं। तो पिच मेजरिंग मशीन का बेसिक प्रिंसिपल और फ्लोटिंग कैरेज का डायमीटर मेजर करते टाइम का प्रिंसिपल लगभग सेम है, खाली थोड़ा सा मशीन का अरेंजमेंट अलग है, ओके, क्योंकि एक में पिच मेजर कर रहे हैं एक में डायमीटर मेजर कर रहे हैं ऐसा। तो इसमें आपका जो मोशन है माइक्रोमीटर का वो अलोंग द एक्सिस है, और उसमें इसमें कैसा है अपना ये कहाँ गया भाई हम लोग, हाँ, इसमें परपेंडिकुलर है माइक्रोमीटर का मोशन एक्सिस के, पिच मेजरिंग में अलोंग द एक्सिस है और इसमें परपेंडिकुलर, बाकी प्रिंसिपल मेजरमेंट का सेम है, सेम प्रेशर दोनों चाहिए और यू आर मेजरिंग लाइक दैट। अभी हम लोगों को 2 वायर मेथड और 3 वायर मेथड थोड़ा सा स्टडी करना है, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, जस्ट अ मिनट, इसमें नहीं है वो, मेरा एक अलग स्लाइड है, मैं यहाँ पे भी देखता हूँ, यहाँ पे भी 2 वायर मेथड हमने नहीं किया, 2 वायर मेथड, 3 वायर मेथड, 1 वायर मेथड, दे आर यूज टू मेजर एक्चुअली दिस वन व्हाट वी कॉल इफेक्टिव डायमीटर मेजर करने के लिए है वो, टू वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। ये देखो इनसाइड थ्रेड अगर आपको मेजर करना है इनसाइड डायमीटर ऑफ द थ्रेड, तो ये लोग क्या करते हैं, इनसाइड डायमीटर के लिए एनविल डालना अंदर मुश्किल है ना, तो हम लोग क्या करते हैं टेपर पैरेलल यूज करते हैं। ये टेपर पैरेलल वेस्ट टाइप एक्सटेंड रहता है, तो मैक्सिमम तो टेपर पैरेलल अंदर डाल के इसको दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे हम लोग,
तो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस उसका अचीव होता है, मतलब वो उसको टच करेंगे, और टच करने के बाद हम लोग रेगुलरली ये एनविल और ये एनविल दोनों साइड में लगा के आइदर माइक्रोमीटर और आइदर फ्लोटिंग कैरेज, उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, ये सो दैट इज वन मेथड। दूसरा एक मेथड है इनसाइड मेजर करने के लिए, बॉल एंड स्लिप गेज मेथड। मतलब अपने पास स्टैंडर्ड डायमीटर बॉल और रोलर्स अवेलेबल है मेट्रोलॉजी में। तो दोनों साइड में दो बॉल हम लोग इस पे टच करेंगे, और बीच में स्लिप गेजेस के मैक्सिमम कॉम्बिनेशन अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ये स्लिप गेज का कॉम्बिनेशन जो मैक्सिमम अंदर जाएगा, ये गैप में बॉल का डायमीटर नोन है, तो ये बॉल का डायमीटर 2 टाइम्स बॉल डायमीटर, और ये स्लिप गेज कॉम्बिनेशन दैट इज नथिंग बट दैट इनसाइड डायमीटर ऑफ थ्रेड। ऐसा भी एक मेजरमेंट का मेथड है। देयर आर मेनी मेथड्स पीपल यूज इन मेजरमेंट। ओके, बहुत है डिटेल इसमें, सब कुछ अपने सिलेबस में नहीं है, हमने डाला जानबूझ के नहीं डाला, बच्चों को तकलीफ कितना देने का, बट बेसिक्स यू आर कमिंग टू वेरी क्लोज टू अवर कोर टेक्नोलॉजी। तो बच्चों को ये मालूम होना जरूरी है, इसलिए ये हम लोग सिखाते हैं। तो मैं और स्लाइड आपको दिखाऊंगा थोड़ा। ये तो हो गया, पिच मेजरिंग मशीन भी हो गया। जस्ट मिनट, ऑटो कॉलिमेटर का तो ये दोनों मैं अभी बंद करता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं अभी। मैं कुछ मैं वो 2 वायर 3 वायर मेथड आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। ये यहाँ पे बोला है ना 2 वायर 3 वायर, सिलेबस में आ गया। स्क्रू थ्रेड गेजेस तो हमने अभी देखे सब। हाँ, फ्लोटिंग कैरेज भी देखा है। 2 वायर 3 वायर यहाँ पे इतना मेंशन नहीं किया इन्होंने, क्योंकि लास्ट ईयर सेमेस्टर में था वो। देखो ऐसे टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, थ्रेड गेजेस पूरे हमने देखे अभी। मेजरमेंट यूजिंग फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर, ये हमने अभी देखा। फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर में मेजरमेंट कैसा करते हैं, लेकिन आगे डिटेल अगर हमको जाना है तो हमको 2 वायर 3 वायर मेथड हमको देखना है। तो एक मैं एक्चुअली 10-15 हो गए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ और छोड़ देता हूँ इसमें। ये देखो अदर इंस्ट्रूमेंट्स में, जस्ट अ मिनट। हाँ, स्क्रू थ्रेड में देखो ये सब उसके एलिमेंट है। मेजर डायमीटर, माइनर, इफेक्टिव डायमीटर, पिच, फ्लैंक एंगल, थ्रेड फॉर्म। सो ये सेल्फ लर्निंग में आपको दिया है सब। ये कॉमन फिगर है, ये बार बार वही आ रही है इसमें। तो उससे जम्बलिंग मत हो जाओ। पहले जो सिखाया मैंने अपने हैंड वाले स्लाइड में, उसमें देखो ये एक बेंच माइक्रोमीटर है। ये फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर का पहला स्टेज है। मतलब ये साइड में आपको फिड्यूशियल इंडिकेटर है, ये देखो ये इंडिकेटर, ये एक पर्टिकुलर प्रेशर पे आपको मेजर करना है। पहले आपको इसमें मेजर करना है स्टैंडर्ड रेफरेंस डायमीटर पे, और बाद में अननोन। और ये तो देखो ये 3 स्केल में, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल और ये वर्नियर स्केल। और इसी के साथ जब दोनों साइड में सेंटर रहेंगे एंड दिस इज फ्लोटिंग ओवर ए प्लेटफॉर्म, देन दिस बेंच माइक्रोमीटर इज कन्वर्टेड टू फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर। मतलब हमने हायर वर्जन से सीखा, ये उसके पहले वाला स्टेज है। तो सम पार्ट ऑफ दैट फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर इज बेंच माइक्रोमीटर। ये देखो बेंच माइक्रोमीटर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले स्टैंडर्ड सिलेंडर इससे मेजर करेंगे, बाद में अननोन मेजर करेंगे। ये सब प्रोसीजर यहाँ पे दिखा है। ये अभी देखा ना, यूजिंग टेपर पैरेलल इंटरनल थ्रेड का। तो सेम सेम कैसे देखो, थ्रेड माइक्रोमीटर यूज करते टाइम हम क्या करेंगे, हाँ, ये एनविल यूज करेंगे। एक अंदर जा रहा है और दूसरा उसी थ्रेड के साथ सामने दूसरा भी, मतलब एक एनविल ऐसा और ये दूसरा ऐसा रहेगा, मतलब उसको वो वी कवर करेगा। तो दैट दैट विल मेजर योर इफेक्टिव डायमीटर। और दूसरे भी मेथड्स हैं, वो वायर मेथड्स। ये वायर मेथड ऐसे हैं कि हम लोग ये वायर मेथड है ना, अगले टाइम देखेंगे क्योंकि उसको टाइम लगेगा। सो यू हैव 1 वायर मेथड, 2 वायर मेथड एंड 3 वायर मेथड। ये हम लोग
और उसके डेरिवेशन से बाद में ये 3 वायर मेथड वगैरह ऐसे वायर्स लेते हैं स्टैंडर्ड डायमीटर के और वो अपोजिट थ्रेड्स में रखते हैं और उसके ऊपर डायमेंशन लेते हैं और वो ऊपर लिया हुआ जो डायमेंशन है रीडिंग ओवर द वायर वो इफेक्टिव डायमीटर के साथ एक एक्सप्रेशन से जोड़ देते हैं. So that portion is 1 wire method, 2 wire method, 3 wire method, which we are going to see next time. Okay, time खत्म हो गया बच्चों अभी, तो I am stopping the recording now. Just a minute. समझ गया ना बच्चों सब आज का? हाँ यस सर. ठीक है, मैं अभी स्टॉप करता हूँ recording. So recording has been stopped now.